Namaste, good evening, everybody. Sunita ma'am, are you there? Yes, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening, everyone. Taji, Shubh Sandhya, sir. Good evening. good evening. So let's start. I think Arun Mohan sir, over to you. Yes, sir. Welcome everyone to the 184th web training series of BTAG in association with our Bharat Sahodaya. Now it's time to turn on our AI to introduce the moderator. So let's not wait a bit. Here we go. I just a rather very intelligent system, shortly it's Jarvis. I welcome you all to BTAG. Dear educator, the new Education Policy 2020 emphasizes problem solving and critical thinking skills. It will help the next generation of Indians prepare for life and navigate uncertain futures, for which teachers need to plan well and execute. Now I welcome my special AI, Vishnu, to invite the moderator. नमस्कार, मैं विष्णु, नाम तो सुना होगा. I welcome all the exuberant educators to the 184 web training series of BTAG in association with CBSE Bharat Sahodaya. Now it's my pleasure to introduce today's moderator, Miss Mukta Singh. Miss Mukta Singh has a decade of experience in teaching. She is qualified in BSc, MA Fine Arts, MA Hindi and ABA. Presently she is working with the Orbis School, Mundhwa, Pune, since 2015. And from 2022 she is the HOD of Hindi in the same school. Miss Mukta is the school training nodal coordinator from 2020 till date. She has received some prestigious awards like Exceptional Academic Mentor by AKS Education Awards 2019 to 2020 and Global Teacher Award 2020. Since 2021, Miss Mukta had been doing co-curricular engagements associated with BTAG Group by presenting 2 articles with artwork published in edition 1 and to Transformers magazine. If we talk about her strength, then she is creative and innovative, dedicated and determined, self-motivated and always open to learn new things, passionate towards Indian art, especially paintings. Moreover, it's been 2 years since she has been practicing Kathak dance. Mukta ma'am, it's our esteemed pleasure to have you as our moderator of this session. Stage is yours, ma'am. Over to you. Mukta ma'am, cordially we invite you. Stage is yours, ma'am. धन्यवाद अरुण सर. तकनीकी माध्यम द्वारा गरिमामय परिचय उद्घोषणा हेतु आपका आभार. आपकी सृजनात्मकता प्रशंसनीय है सर. आइए हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं. शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार. सीबीएसई भारत सहोदया की सहभागिता से बीटेक द्वारा आयोजित किए जा रहे आभासी प्रशिक्षण के 184वें सत्र का आगाज करते हुए मैं मुक्ता सिंह आपकी मध्यस्थ के रूप में सभा में उपस्थित समस्त गुरुजनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, समन्वयक बीजू पिल्लई सर और आज की मुख्य अतिथि एवं कुशल वक्ता सुनीता शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इसका निर्वहन किया जाएगा. प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने माइक म्यूट रखें. प्रतिभागी अपने सवाल संवाद खंड अर्थात चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं. परिस्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा सत्र के अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे. सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर कालखंड के दौरान प्रतिभागी प्रश्न पूछने हेतु आभासी माध्यम के सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें. क्रमानुसार उनका नाम पुकारे जाने पर वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें. प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट ऑफ फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा.
जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। आइए मार्गेट मीड के शानदार कथन के साथ हम सभा आरंभ करते हैं। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें। सीखने और सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है, अर्थात किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना तथा उसके व्यवहार में सुधार कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आवश्यक संशोधन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया। किंतु इसके उद्देश्य की पूर्णता तभी है जब छात्र इससे लाभान्वित हो सके। छात्रों तक पाठ को पहुंचाने हेतु बनाई जाने वाली पाठ योजनाओं की बारीकियों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से निर्मित आज की कार्यशाला का विषय है एनईपी 2020 के समग्र और समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप पाठ योजनाएं। मेरा विश्वास है इस सत्र के माध्यम से शिक्षकों को भावी पाठ योजनाएं बनाने में अवश्य मदद मिलेगी। मध्यस्थ की भूमिका में कार्यक्रम का संचालन भार संभालते हुए मैं अति उत्साहित हूँ और निर्देशक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर तथा बीटेक समूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रतिभावान और संकल्पित इच्छा शक्ति से भरपूर बेहद सादगी पूर्ण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सलाम सर ने समय की मांग के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को एक वैश्विक मंच देने तथा उन्हें एक सूत्र में पिरोने का मुश्किल किंतु प्रशंसनीय कार्य बड़ी ही सफलतापूर्वक किया है। इस मंच के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर सलाम सर सीबीएसई संसाधनकर्ता, मास्टर ट्रेनर और विब्ग्योर हाई के प्रिंसिपल हैं। आप भारत ट्रांसफॉर्मर एकेडमी समूह के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर के शिक्षक समाज हेतु एक गौरवपूर्ण तथा राष्ट्र सशक्तिकरण का मंच है। सर, मैं समस्त हिंदी सेवियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अपने उत्साहवर्धक शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। ओवर टू सलाम सर। Thank you, ma'am. Namaste. Good evening, everybody. My team members, BTAC members, here we have Mr. Biju S. Pillai also joined. Very happy to meet everybody, Arun Mohan, Sarita Warrior, Sunita ma'am, Muktaji, all the Hindi, teaching community who have joined us. Well, thank you so much, Sunita ma'am, for offering us this session. Indeed, it is very relevant as NEP has so much expectations from teachers, from schools, to build a new India and to make the students very competitive. So thank you so much, all participants, for joining. Let's make use of these kinds of sessions for the benefit of our classroom. Sunita ma'am has so much more to tell you than we know. Definitely you will be benefiting a lot from her session, her presentation. All the very best to everybody. Thank you so much, Sunita ma'am, once again. All the very best to you. And thank you, everybody. Have a very good evening. Have a very good session. Over to Mukta ma'am. Thank you. इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है आप सदैव इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपके संरक्षण में यह मंच इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहेगा। आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर का, जो गोकुलम पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं तथा 2 दशक से अधिक समय से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही आप भारत सहोदया के साथ सह संस्थापक व कोषाध्यक्ष के रूप में भी जुड़े हुए हैं। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। ओवर टू बीजू सर।
Thank you, Mukta ma'am. Wonderful evening to all. Respected Salam sir, today's resource person Sunita Sharma ma'am, and all other dignitaries present in the Bharat Sahodaya platform. Actually, as Mukta ma'am told in the beginning, it is for the last many years we are waiting for a entire change in the educational sector where NEP is going to play a major role, and it is high time to think about changing even the lesson plan and each particular topic, how crystal clear and how elaborately the teacher should be able to evaluate each child according to their caliber, and so we can expect a very good evening and a very good class from our respected resource person Sunita Sharma ma'am. So welcome all the dignitaries and all the educators of BTech. We'll have a wonderful session and we will gain much more knowledge in the end of this evening. Thank you, ma'am. Thank you. Back to Mukta ji. सर, हमारा मनोबल बढ़ाने हेतु आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, सत्र को गतिमान करते हुए हमारे बीच उपस्थित आज की संसाधनकर्ता सुनीता शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुनीता जी ने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर के साथ बीएड करते हुए हिंदी सेवी के रूप में लगभग 23 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है। साथ ही आप भारत सहोदया की ई पत्रिका में उप संपादक के पद पर भी कार्यरत हैं। ऑनलाइन सत्र के दौरान आपने संसाधनकर्ता तथा मॉडरेटर के रूप में विशेष भूमिका अदा की। 5वीं, 6वीं तथा 7वीं के लिए पाठ्यक्रम विकास तथा 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के लिए नेवियंस कैरियर परामर्श प्रस्तुतियां दी। छात्रों के विषय सुधार के लिए एक नई पहल के माध्यम से काम करने के लिए 100 शिक्षकों के बीच भाग लिया और आप 5वें स्थान पर रहीं। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आविष्कार में सक्रिय भागीदारी तथा 13 सितंबर 2020 को आयोजित नीट परीक्षा में आपने केंद्रीय अधीक्षक की भूमिका निभाई। लेखिका के रूप में आपने अध्यायवार एमसीक्यू, साहित्य सागर और एकांकी संचय, आईसीएससी कक्षा 10वीं विषयवार व्याकरण एमसीक्यूज, आईसीएससी कक्षा 9वीं और 10वीं हिंदी नूतन अभ्यास पुस्तक, आईसीएससी कविता भावार्थ में सफल लेखन कार्य किया। आपके सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको एक्स्ट्रा माइल एजुकेटर अवार्ड 2022, हिंदी रत्न सम्मान 2023, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपके सानिध्य का लाभ हम सभी हिंदी सेवियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं यह मंच सुनीता मैम को सौंपती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सुनीता मैम। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सलाम सर जी, बिजू पिल्लाई सर जी, अरुण मोहन सर जी, सरिता मैम एंड मुक्ता मैम। मुक्ता मैम, आपकी शुरुआत में ही आपके लिए डॉक्टर नरेश जी ने कहा है कि नमस्ते मैम, आपका संचालन का तरीका बहुत ही अद्भुत है, तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। अच्छी, यस, शुरुआत में ही इतनी अच्छी प्रशंसा मिलना सराहनीय है और आप सही में संचालन बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। विषय शुरू करने से पहले अरुण मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बार यहाँ पर प्रवेश करते हैं उतनी बार आपके आपका जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से आप उसे पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है। देखा जाए तो अगर आप, क्योंकि एक ही चीज से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, ये मानसिक प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ नया चाहता है। और यही नयापन, यही नवाचार, यही नवीनता हम जब अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लेंगे तो अंत जो होगा वो बहुत ही सराहनीय होगा। सर, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, शुरुआत कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम सर। Yes, ma'am, please proceed. Yeah, thank you. Can I get the permission of sharing the screen?
मुक्ता मैम, स्क्रीन इज विजिबल? जी मैम, क्लियरली विजिबल है बहुत मैम। बहुत अगर धन्यवाद। आप उस, हाँ ठीक। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। एनईपी 2020 के समग्र और समावेशी शिक्षण के दृष्टिकोण के अनुरूप पाठ योजनाएं। अब जैसे ये शब्द आता है हमारे सामने, पाठ योजनाएं, मैं चाहती हूं आप सभी मेरे साथ चैट बॉक्स में जुड़े रहें। पाठ योजना जैसे ये शब्द हमारे सामने आता है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं, किन किन बातों का ध्यान जो है वो हम पाठ योजना तैयार करते समय अपने सामने रखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यस, धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, यस, आउटकम, ऑब्जेक्टिव्स, धन्यवाद दीपा जी। एक्टिविटी, एक्टिविटीज, कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग एड्स, मेथोडोलॉजी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य, मेथड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, वैल्यूज, यस, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, मॉरल वैल्यूज, 21वीं सेंचुरी, यस, 21st सेंचुरी की प्रश्नोत्तर, स्किल्स, प्रश्नोत्तर, प्रैक्टिकल एक्ट, यस, शिक्षण शिक्षण विधियां, विधि, वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज, यस, अन्य विषयों के साथ, यस, सस्वर पाठन, बहुत उत्तम, भाषा कौशल, प्रस्तुतिकरण, स्टूडेंट्स लेवल, टाइम मैनेजमेंट, आउटकम, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। चलिए, सो पाठ योजना है क्या? किसी भी विषय को सरलतम, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई पूर्व योजना ही हमारी पाठ योजना कहलाती है। अब हम सभी जानते हैं कि वर्ष की शुरुआत में हमें यह नियोजन दे दिया जाता है कि प्रत्येक माह में कितने दिन जो है हमें पढ़ाई, मतलब पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं, वर्किंग डेज जिसे हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं। और इन्हीं वर्किंग डेज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिक्षक गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए वह अपने पाठ का नियोजन करता है। अब इस पाठ नियोजन के साथ साथ बहुत सारी अन्य चीजें, जैसा कि अभी आपने मेरे साथ साझा किया, कि ये सभी चीजों का, इन सभी उद्देश्यों का ध्यान जो है हमें रखना पड़ता है। अब पाठ योजना की आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कि यह अध्यापक के कार्य को नियमित और नियोजित व्यवस्थित करता है। छात्रों की समझ में सुगमता आ जाती है। अध्यापक जब अपना कार्य जो है समय पर पूर्ण कर पाते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास और दृढ़ता जो है वह बढ़ती है, और वे अपना अध्यापन कार्य जो है वो बहुत ही कुशलता के साथ संपन्न कर पाते हैं। अध्यापक का समय और शक्ति जो है वह नष्ट नहीं होती। जो हमें मिली है कालावधि, जो मिली है, कई विद्यालयों में 30 मिनट है, कहीं पे 35 है, कहीं पे 40 है, तो वो जो समय अवधि है, उस समय अवधि के अनुसार जब हम अपनी रूपरेखा को तैयार करके कक्षा में पाठ योजना के साथ जाते हैं तो समय और शक्ति व्यय नहीं होती। पाठ योजना का अनुकरण करने से असावधान शिक्षक भारी भूलों से बच जाते हैं और सुयोग्य व्यक्ति की मौलिकता में कोई बाधा नहीं पड़ती। पाठ योजना पाठ विषय को सुसंगठित रूप प्रदान करती है, जिससे उसके संचालन में विशेष सुविधा रहती है। बहुत जरूरी है कि हम अपने इस कार्य को विषय सामग्री के चयन, शिक्षण की अनेक विधियों, छात्रों की क्रियाओं के विषय में अध्यापन का विचार करने पर हम बाध्य हों। पाठ योजना अध्यापक को सर्वोत्तम शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता करती है। यहाँ जो मैंने अभी आप सभी के समक्ष रखा, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। अब पाठ योजना की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग रूपों में ये पाठ योजनाएं तैयार की जाती हैं। दैनिक पाठ योजना, जो हम उस दिवस के लिए जो हमने सोचा है कि आज मैं कक्षा में जाकर ये इस विषय को, इस कविता के इस अंश को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, या व्याकरण के इस अंश को मैं लेने वाली, इकाई, यूनिट और वार्षिक पाठ योजना, जैसा कि शुरुआत में ही, वर्ष के शुरुआत में हम अपने जो दिवस हमें दिए गए हैं उसके अनुसार हम अपनी पाठ योजनाएं निर्धारित करते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हुए विषयगत पाठ योजना। विषयगत पाठ योजनाएं में क्या आता है कि ये पाठ योजनाएं एक विशिष्ट विषय पर आधारित होती है, जैसे त्योहार, भोजन या परिवार। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम कक्षा 7वीं में पढ़ा रहे हैं और भोजन के विषय में जो पाठ है हमारा, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उस समय विषय हमारा जो है उस पर केंद्रित है। हम उसी विषय को आज हमने सोचा है कि हम भोजन भोजन में पौष्टिक भोजन क्या है, उस पौष्टिक भोजन के ग्रहण करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना कार्य जो है, आज अपनी पाठ योजना जो है मैं तैयार कर रहा हूँ और मैं इसी रूप में आगे बढ़ूंगा। ये त्योहार कई बार हम अनुच्छेद लेखन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद लेखन आज तैयार करना है, त्योहारों के विषय में बच्चों के साथ चर्चा करनी है। तो त्योहार कौन कौन से हैं, कौन से राष्ट्रीय त्योहार हैं, कौन से सामाजिक त्योहार हैं, कौन से धार्मिक त्योहार हैं, क्या हमारा बच्चा इन तीनों के बीच का अंतर समझ पा रहा है, इन त्योहारों का सामाजिक जीवन में महत्व क्या है, आज इन त्योहारों की दशा क्या है, आज इन त्योहारों को मनाने की विधियों में किस किस प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। सो ये क्या है, विषयगत। प्रोजेक्ट आधारित पाठ योजनाएं, इस पाठ योजना में छात्रों को एक निश्चित समय अवधि में एक प्रोजेक्ट या प्रकल्प जो है पर काम करने के लिए हम उनमें शामिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ही हम सभी जानते हैं, जैसे ही जून जुलाई का महीना आया, हम सभी जो है अधिकतर विद्यालयों में पौधारोपण जो है के लिए विषय चुन लेते हैं और सभी छात्रों को किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण रक्षण, अब वही साधारण चीजें पर्यावरण रक्षण की तरफ अब हम इस बच्चे को कैसे उसमें वो रुचि जगाएंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट के जो तरीके हैं हम यहाँ पर नयापन, नवाचार, नवीनता कैसे लाएंगे। चलिए चैट बॉक्स के द्वारा जुड़ते हैं। विषय होगा हमारा पर्यावरण रक्षण और हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं कि अब पर्यावरण रक्षण जो है, हम वही नहीं चाहते कि जल प्रदूषण क्या, मतलब प्रदूषण के बारे में, या हम ये नहीं चाहते कि बच्चा अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के बारे में बात करे, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्यावरण रक्षण में हम कुछ नए तरीके से उनके सामने एक प्रकल्प रखें। चलिए, वर्चुअल टूर बहुत उत्तम। वर्चुअल टूर के द्वारा हम क्या दिखा सकते हैं, दर्शाएं। यस, कंजर्वेशन फील्ड विजिट, यस, बहुत उत्तम। मुक्ता जी, आपसे अनुरोध होगा कि ये आप अगर थोड़ा सा लिखती चली जाएं और जी मुझे जी अंत में ये बहुत बड़ी बिल्कुल। मदद होगी, क्योंकि जी बहुत जी अच्छे से हमारी सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदी विभाग की यही कि वे जुड़ते। पोस्टर मेकिंग बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। जी मैम। गार्डन, यस, मेकिंग गार्डन बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। टेकिंग देम टू अ फील्ड ट्रिप फर्स्ट, यस, पोस्टर मेकिंग बहुत उत्तम। और पर्यावरण में हो पर्यावरण रहे में परिवर्तन, परिवर्तन, वेस्ट मटेरियल वेस्ट यूज, बहुत मटेरियल, उत्तम, बहुत हॉबीज, उत्तम। किचन गार्डन, किचन गार्डन, पिक्चर्स, पिक्चर्स। पिक्चर्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रीट प्ले, यस, कोलाज मेकिंग बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। यहाँ पर मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करना चाहूंगी कि एक विद्यालय में जहाँ पर मैं पढ़ाती थी, वहां पर कक्षा 7वीं, पूरी कक्षा 7वीं के छात्र इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में लेते थे। एक कक्षा के 40 बच्चे जो हैं, वे 40 बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट, ये उन्होंने एक विषय लिया। वे 40 बच्चे जो हैं बाकी अन्य कक्षाओं में जाकर, उनकी ड्यूटी है कि वे अन्य कक्षाओं में जाएंगे और वेस्ट मैनेजमेंट की, आपका ब्लू डस्टबिन में क्या जाएगा, ग्रीन डस्टबिन में क्या जाएगा, रेड डस्टबिन में क्या जाएगा, ई वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, इन सभी का वो सिर्फ बोलते नहीं थे। हर एक क्लास के लिए 2-2 बच्चे अपॉइंट किए जाते हैं। वो बच्चे वहां पर क्लास में जाते थे, डाटा कलेक्ट करते थे। अब डाटा कलेक्ट करने से उन्हें ये पता चलता था कि उस क्लास में जो आप पर्यावरण रक्षण के बारे में जब आप उनको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या सही में वो बच्चे इसे जीवन में अपना रहे हैं। तो उनके कक्षाओं में एक डस्टबिन हर कक्षा में रहता है। ड्राई वेस्ट के लिए एक छोटा सा बिन रखा गया, कार्टन बॉक्सेस रखे गए ताकि बच्चे उसमें अपना सूखा कचरा डालें। अन्य ई वेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब्स के सामने बिन्स रखे गए ताकि बच्चे की कक्ष, मतलब अगर जो भी ई वेस्ट है वहां पर जाकर बच्चा जो है डाल सके। तो ऐसा करने से उन बच्चों के पास हर एक कक्षा का हर महीने का
क्या है? डाटा है। अब उस डाटा के बाद बच्चा जब बैठ रहा है 1 महीने के बाद, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, एनालाइज कर रहा है बच्चा, उसे देख रहा है। जिन कक्षाओं में वो नहीं हो रहा है, वो अपना दायित्व समझता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मैं इस कार्य को अच्छे से करूं। तो कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे समझाने में गलती हो रही है, इसलिए तो ऐसा नहीं। अब एक ही छोटे से प्रकल्प के द्वारा बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज आई, बच्चा जिम्मेदार बना देश के प्रति, उसके कर्तव्यों को वो समझ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत गहराई तक समझ रहा है। और ये ही नहीं, वे बच्चे हर वर्ग के, हर कक्षा के फ्लोर के ऊपर जितने भी वहां पर कार्य सेवा कर्मी हैं, उनके साथ जुड़कर कि वो सही तरीके से वहां तक वो पूरा कचरा ले जा रहे हैं। और वहां पर भी बच्चों की ड्यूटी है जो देख रहे हैं कि कितना कचरा जो है वह जा रहा है, उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उसे फिर से ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत उत्तम तरीका था ये प्रोजेक्ट जो है वो केवल मतलब 1 महीने नहीं, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों को, जब वो बच्चे करते हैं, अन्य छात्र भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो लंबे समय तक चलता है और बच्चा जीवन भर ये गलती नहीं करता। एक बहुत बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और एक था, मैं क्षमा चाहूंगी, हेलमेट। हम सभी जानते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी है, इतने सारे नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो नियम क्या बना दिया कि गेट के बाहर अगर पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं, अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये बच्चे जो हैं सीख रहे हैं। पर्यावरण को, रक्षण को सेव करने के लिए उत्तम था कारपूलिंग। हम बहुत सारे विषय ऐसे जानते हैं जो हम अपने जीवन मतलब दैनिक दिनचर्या में अपनाते भी हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स दें जो बच्चा लगातार करता रहे, सिर्फ एक दिन के लिए सबमिशन करके उसे सबमिट ना करे, उसे ब्रॉडर वे पर लेकर जाए। क्योंकि जब वो बैठेगा, डाटा लेगा, एनालाइज करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने रखेगा, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स उसके फुलफिल हो रहे हैं, कहाँ कमियां हैं, वो खुद एनालाइज करके डिसीजन पावर उसके पास होगी, डिसीजन मेकर वो होगा और परिवर्तन जरूर होगा। जी मैम। आगे बढ़ते और हैं। मुझे लगता है शायद यहाँ पर बच्चा ये भी समझ सकेगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मेहनत कितनी लगती है, है ना, बहुत या लगती है, है ना, कहना ये आसान है, कहता करना आसान है। जी, जी, बहुत बहुत बढ़िया मैम, अति धन्यवाद। उत्तम। विभेदित पाठ्य योजनाएं, विभेदित पाठ्य योजनाएं ऐसी पाठ्य योजनाएं हैं जो विभिन्न क्षमताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे कक्षा में अलग अलग सभी की जो मानसिक क्षमता है वो अलग होती है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें हर बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजनाएं बनानी है। हमें ये भी पता है कि हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत जल्दी से चीजें पकड़ लेते हैं, और कई बच्चे हैं जिनका हाथ हमें पकड़ने की आवश्यकता है। तो हर बच्चा हमारे साथ आगे बढ़े, इसका ध्यान रखना हमारी पाठ्य योजनाओं में अत्यंत आवश्यक है। प्रौद्योगिकी सक्षम पाठ्य योजनाएं, यस, प्रौद्योगिकी मतलब हमें आईसीटी या कंप्यूटर से हमें उन्हें जोड़ना है, आईटी से हमें जोड़ने की आवश्यकता है। ये पाठ्य योजनाएं सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक है। कैसे? उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि कविता हम पढ़ा रहे हैं हर वर्ष, हमारी हर एक मतलब कक्षा 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं में देश के ऊपर कविता अवश्य होती है। या अगर समझिए हिमालय के ऊपर आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं, आप योजना बनाते समय ये पहले ही, पढ़ाने से पहले ही आपकी योजना होनी चाहिए कि मैं अपनी कक्षा को अलग अलग 5 भागों में विभक्त करूंगी। एक छात्र हिमालय से निकलने वाली नदियों की जानकारी प्राप्त करेगा, एक घाटियों में बसे शहरों की, एक जंगली जीवन की, एक वहां पे पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों की, और एक हिमालय की चोटियों की बात करेगा। अब जब ये सभी छात्र अलग अलग जानकारी एकत्रित करके आ चुके हैं, उसके बाद जब आप हिमालय पढ़ा रहे हो, तो हिमालय को हमने कविता में केवल थोड़ा सा न जानते हुए, हमारा बच्चा उसी 30 मिनट में जब हम इन बच्चों को बोलने का मौका देते हैं, तो ये बच्चा वो जानकारी देता है जो आवश्यक है। हिमालय, हिमालय की विशेषता, हिमालय की महानता, हमारे भारतीय मतलब भारत में इसका क्या महत्व है, ये हमें बताना जरूरी है। लेकिन उसके आसपास वहाँ का जनजीवन कैसा है, कौन सी चुनौतियां हैं जो वहाँ के लोगों के सामने हैं, किस प्रकार का जीवन में जी रहे हैं, यदि हम ये भी बताते हैं तो हमारा छात्र
और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनता है। पाठ योजनाएं बनाते समय शिक्षकों को, हम सभी जानते हैं कि इन कारकों का, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, उनमें कौन कौन से कौशल हैं, पाठ्यक्रम के मानकों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पाठ की सामग्री, अब पाठ की सामग्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा हमारा पाठ होगा उसके अनुसार जो है हमारी पाठ की सामग्री जो है वो बदल जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम जुड़ेंगे, दो चीजें हम करेंगे। एक पाठ की सामग्री जो है जिसको हम टीचिंग एड्स भी कहेंगे। अब इन टीचिंग एड्स में अगर मैं हिमालय कविता पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग एड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, किस किस प्रकार। अब अगर मुझे पाठ योजना बनानी है और उसमें मैं लिख रही हूँ कि हिमालय के ऊपर कविता पढ़ा रही हूँ, तो हमारे यहाँ पर टीचिंग एड्स क्या क्या होंगे। चलिए लोअर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ तरीके बताइए। जरूर बताऊंगी। मानचित्र, जी, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। चार्ट, वर्किंग मॉडल, चार्ट, चार्ट, ई लर्निंग, यस स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई लर्निंग इज another example. Importance of Himalayas chart, Tata टाटा Edge, एज, रियल Yeah. टीचिंग एरिया, yes, नए Class शब्दों का Edge. चार्ट, क्लासेज, एक्स्ट्रा मार्क्स, पिक्चर Pictures ऑफ of डिफरेंट different mountain माउंटेन्स across the अक्रॉस द globe. ग्लोब, बहुत उत्तम अंजुम जी। हिमालय We can चार्ट, show the Himalaya chart, discussion, visual presentations of Himalaya. बहुत उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल थिंग्स, पीपीटी ऑफ Yes. हिमालय। Yes, इसमें मैम मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अवश्य अगर मैम। हम गूगल मैप के थ्रू एआई Yes, को अगर हम यूज करते, क्योंकि मैंने खुद ने ये किया है जब मैं बहुत बचेंद्री अच्छा पाल लगता है। पढ़ाया करती थी। बहुत शानदार लगता है मैम, और बच्चों को बहुत रुचि होती है और वो अपने से कोशिश करते हैं कि मैम हम भी एक प्रोजेक्ट बना कर लेकर आते हैं। हम भी उस स्पॉट को ढूंढेंगे। हम भी ढूंढेंगे उसको। जी जी बहुत उत्तम। यस मुक्ता जी, मतलब हमने कोरोना काल में सीखा बहुत है। बहुत सीखा, नो टेक्नोलॉजी डाउट वरदान बन गई थी उस जी। समय। यस मैम, बल्कि मैं तो ये मतलब मैं ये मानती हूँ कि हर बुरा वक्त कुछ अच्छा देकर जरूर जाता है, बहुत और ये बहुत अच्छा था, इसने हम शिक्षकों को बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बना बहुत दिया। ऐसे आत्मनिर्भर बने। शिक्षक जो टेक्नोलॉजी से दूर भागते थे, आज जी मैम, टेक्नोलॉजी उनके लिए शस्त्र है और जिसका वो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर उपयोग रहे कर हैं। रहे हैं। जी मैम, चलिए शिक्षण रणनीतियां, शिक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए अब शिक्षण रणनीतियां, चलिए चैट बॉक्स से फिर से जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारी शिक्षण रणनीतियां क्या होंगे। फिजिकल टूल टू हिमालय विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, यस अधीरा जी। रीजन ऑफ नेम बिहाइंड हिमालयस, यस। वर्चुअल टूर, क्विज, डिबेट, डिबेट, यस। कविता, कविता, यस यस। मैथोलॉजीज बैकग्राउंड, बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल बहुत। रिसर्च, वर्ग पहेली, वर्ग पहेली बहुत बढ़िया। इज यस, ऑल्सो वेरी गुड आइडिया, वेरी यस इंटरेस्टिंग। बहुत यस, बहुत धन्यवाद। छात्रों द्वारा काल्पनिक चित्र, वहाँ की जीवन शैली, पर चर्चा, कविता गान, कविता का उतार चढ़ाव, बहुत उत्तम पुष्पा जी। गिव रीजन, यस कविता जी। जब हम बच्चों को उनका पौराणिक महत्व क्या है, हिमालय का पौराणिक महत्व क्या है, किस प्रकार से वो आज भी हमारी मतलब सीमा पे प्रहरी के समान डट के खड़ा है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अन्य विषय के साथ इसको जोड़ सकते हैं। हम अपने विषयों को, अपने मतलब कविताओं को अन्य विषयों के साथ जोड़ते हैं। यहाँ आपकी पूरी ज्योग्राफी आती है। बच्चा ये जानेगा कि वह उत्तर पूर्व सीमाओं से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक रहा है, दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाओं की वजह से उत्तर भारत में जल मिल रहा है। कृषि प्रधान देश है हमारा, यहाँ पर जब बर्फ पिघलती है तो वर्ष भर नदियों में जल रहता है। पूरी ज्योग्राफी जो है बच्चा यहाँ पर आसानी से, कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, कहाँ पर वह आकर बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, उसकी जो पूरी यात्रा है, बहुत ही अच्छे से हम इसे अन्य विषयों के साथ जोड़ सकते हैं। मूल्यांकन, शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र पाठ से अपेक्षित सीखने को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही उत्तम। हम सभी जो है हम मतलब कहते हैं कि हमारा आधार ही है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण जो उनके द्वारा किया गया है। लेकिन बहुत सुंदर वर्गीकरण है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा जो इन 3 शब्दों से परिचित नहीं है। अब संज्ञात्मक में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं पढ़ते पढ़ते मैंने ये पढ़ा कि संज्ञात्मक क्या है। संज्ञात्मक जो है वो आपके ज्ञान से जुड़ा है। तो हेड, भावात्मक हार्ट और क्रियात्मक हैंड। सो दीज आर 3 एच। तो आपका हेड मतलब ज्ञान, तो जो भी ज्ञान से संबंधित है वो आपका संज्ञानात्मक है। जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जहां पर आप अभिव्यक्ति करेंगे, जहां पर आप महसूस करेंगे, जहां पर आप उसको फिर से अपनी भाषा को अभिव्यक्त करेंगे। क्रियात्मक, जहां पर आप उसे क्रियान्वित रूप में करने का प्रयास करेंगे। सो ये जो है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। कुछ नया नहीं है, सब हम जानते हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगी। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी संज्ञानात्मक। भावात्मक में रिसीविंग, आग्रहण करना, अनुक्रिया करना, प्रतिक्रियाएं देना, रिस्पॉन्ड करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि छात्र ये जाने कि जब उनसे प्रश्न किया जाता है, किसी भी जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया किस प्रकार दे, वो खड़ा हो, किस प्रकार से आदर, उसकी भाषा में आदर हो, बहुत अच्छे से अपने शब्दों को कहने का प्रयास करे। मूल्य निर्धारण, वैल्यूइंग, व्यवस्थापन और कैरेक्टराइजेशन, चारित्रिकरण। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रियाएं, कार्य कौशल और जटिल बाह्य व्यवहार। ये सभी हम जानते हैं। यहाँ पर अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे, सीधा आएंगे हम अपने विषय पर कि आज ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए। अब बदलाव में हम इसे अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। एक कविता है जो मेरे ध्यान में बार बार आ रही है, तो सोचा पहले कविता साझी कर देती हूँ आपके साथ। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जिससे कोई जी न चुराए, नई नई हो बातें उसमें, सारी बातें मन को भाए। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी टिक न पाए। कितना कुछ भी याद करें, हम फुर से गायब हो जाए। अब ये हमारी स्थिति है। अब इसमें बदलाव कैसे चाहते हैं? दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाएं। जिज्ञासा हो शांत सभी की, भीतर का तम मिटता जाए, भीतर का तम मिटता जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत फिर से खूब चाहूँ। मैम, बहुत खूब, बड़ी बहुत प्यारी बहुत कविता धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब यहाँ पे एक साधारण सा प्रश्न हर कक्षा का विद्यार्थी मुझे लगता है हमसे पूछता है कि आज के जमाने में हम लेटर क्यों लिख रहे हैं मिस। अब ऐसे में हम हमारे छात्रों को क्या जवाब देंगे? चलिए आ जाते हैं चैट बॉक्स में। कैसे हम उन्हें समझाएं कि आज भी ये जो पत्र लेखन हम कर रहे हैं, इसके द्वारा क्या आवश्यक है, क्या हम क्या चाहते हैं हम बच्चे से। कम्युनिकेशन, यस, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। प्लीज शेयर दिस Share this वीडियो। video 21वीं सेंचुरी 20th के century. स्किल्स, यस। अब यहाँ पर बच्चे के मन में यही दुविधा रहती है कि पत्र लेखन क्यों लिख रहे हैं। ना तो हम किसी को पत्र भेजते हैं, मैम मोबाइल ऑन कीजिए और उसको मैसेज भेज दीजिए। भाषा का विकास, तकनीक का प्रयोग करने के लिए अक्षरों का ज्ञान, न्यू टेक्नोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल, डेवलप लैंग्वेजेस, एक्सप्रेस व्यूज, Express views यस, using, वेरी yes. वेरी इंपॉर्टेंट। Writing skill will improve. राइटिंग स्किल, Yes. अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कौशल, कौशल, धन्यवाद पीयूष जी। भाषा लेखन कला, हमारे कला, अंदर की भावना को व्यक्त करना। काफी सारे जवाब आ रहे हैं मैम, काफी अच्छे अच्छे, बहुत, मतलब एकदम तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही उत्साह आत्मीयता, बढ़ाता है। जी आत्मीयता, यस रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सी जैसे अभी आपके सामने जो शब्द आ रहे हैं, आत्मीयता। जी। बच्चा जो है अपने आप को अभिव्यक्त करता है पत्र के द्वारा। तकनीकी शिक्षण में नवाचार, यस, ईमेल आने की वजह, ईमेल जो जुड़ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। यहाँ पर छात्र जो पत्र के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, कैसे उसे करना है, ये क्या है, इसके पीछे की यात्रा क्या है, क्यों पत्र लिखे जाने चाहिए। जब ये महत्व हम उसे बताते हैं,
इन एक दो पत्र ऐसे पढ़िए आप, गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र, नेहरू जी द्वारा लिखे गए पत्र, यदि हम उन्हें फैसिलिटेटर के रूप में, जब हम उन्हें ये चीजें अपने सामने रखकर देंगे, तब उन्हें वो गहराई समझ में आएगी। मुझे आज भी याद है, उसकी माँ एक पाठ है जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी मरने से पहले अपनी माँ को पत्र लिखता है। अब वो पत्र पढ़ने के बाद जब उस माँ की व्यथा जो है कि वो ये जानती है कि आने वाला अगला सूरज जो होगा, उस सूरज पर अरुण रूपी रथ जो है वो आएगा और इसके बालक को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। ये पंक्तियां जो है, जिस तरीके से वो भाव जिस तरीके से रखे गए, एक्सप्रेशन व्यूज, धन्यवाद रीटा शर्मा जी। तो यहाँ पर बच्चा जब वो गहराई यदि वो समझ पाता है, यदि वो अपने इन भावों को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाता है, तो बहुत ही उत्तम है। आज ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम बच्चों के साथ समय व्यतीत ही नहीं कर पा रहे। तो बच्चा अभिव्यक्त करे, तो ये क्या करेगा, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे पास है। तो जितना समय हमारे पास है, हमें उसे जोड़े रखना है और इनकी गहराइयों को बताना है। बेटा करिकुलम में है इसलिए लिख लो, नहीं। पत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने मन की गहराइयों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने मन के दुख को उसके मन तक पहुंचा सकते हैं। मुझे आज भी याद है, जब ये उसकी माँ, ये जो हमने कहानी है, जब हमने मंच पर इसका प्रस्तुतिकरण किया था, और वो पत्र जब वो बच्चा पढ़ रहा था, वहां पर उपस्थित हर एक पालक की आंखें जो है वह नम थी। ये शक्ति है इन पत्रों में। तो क्यों ना ऐसी चीजें उनके समक्ष रखें, ऐसे उदाहरण उनके समक्ष रखें, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए, एनईपी के द्वारा अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्षमता भाव आधारित, अभिव्यक्ति करने के लिए मैम एक बहुत बड़ा अच्छा है, भाव अभिव्यक्ति करने के योग्य बनाना, संबोधन, Yes, कार्य परिचय और धन्यवाद लेखन। मैम इसमें एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि जब हम जी मैम। पत्र की बात करते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर बच्चे हमसे पूछा करते हैं, जब हम हायर क्लासेस में आते हैं, 10वीं में हमें काफी सारे पत्र हैं, 9वीं में हमें पत्र हैं, तो उसमें बच्चे कहते हैं मैम लेटर में तो यहाँ भी हम लिख रहे हैं, अगर हम तकनीक का माध्यम अगर हम अपनाते हैं तो वहां भी हम वही चीज लिख रहे हैं। तो जो मैं उन्हें समझाती हूँ कि जब हम लेखन करते हैं तो हर इंसान की अपनी लेखन की एक शैली होती है, शब्द लिखने का एक तरीका होता है। जब आपका लिखा हुआ पत्र आपके दोस्तों के पास जाता है तो उसमें आप नजर आते हैं, लेकिन जब हम तकनीक के माध्यम से लिखते हैं तो ए अल्फाबेट हर जगह, ए मेरा लिखा हुआ भी वही दिखता है, आपका लिखा हुआ भी वही दिखता है, वहां आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आता है। तो पत्र जब हम लिखते हैं अपनी लेखन शैली में, तो हमें आप नजर आते हैं, जिसके पास आप पहुंचते हैं सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा नहीं पहुंचता, बल्कि आप स्वयं वहां पहुंचते हैं। तो इस तरह से बच्चे काफी उत्साहित होते हैं मैम, और तब वो लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कहना तकनीक के माध्यम से भी हम वही लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक एक्टिविटी की थी हमने पत्र लेखन के लिए, कि उनसे कहा कि चलिए इनलैंड लेटर्स जो बाहर मिलते हैं आप लेकर आइए, और उनसे कहिए कि मतलब माता जी को, पिताजी को, अपने बड़े भाई को जो आपसे मतलब अलग कॉलेज में रहता है, आपको उन्हें पत्र लिखना है। विषय हम उन बच्चों को अलग अलग दे दें और उनसे कहें कि पत्र लिखो और उसे पोस्ट करो। और जब वो पत्र उन्हें मिल जाता है, जब वो पढ़ते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनके चेहरे के हाव भाव देखो। जी, ये जब हम करते हैं तो बच्चा कभी हमसे ये सवाल नहीं करता। नहीं करता है, बिल्कुल सही है मैम, बहुत जी। बढ़िया। ना, क्षमता आधारित हमारी पाठ्य योजनाएं जो है हिंदी में छात्रों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना तो शामिल है ही, लेकिन आलोचनात्मक सोच, समस्या प्रधान कौशल विकसित करने पर भी हमें ध्यान देना है। ना, आलोचनात्मक सोच यहाँ पर ये नहीं है कि छात्र आलोचना करना सीखे, क्रिटिसिज्म नहीं है ये, यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है कि उसकी कमियां निकाल दो या उसकी उसमें जो गलतियां है वो निकालो, नहीं। बच्चा मूल्यांकन कर सके, बच्चा उसे पढ़ सके और ये बता सके कि ये ऐसे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें ये कमी है, इसे ऐसे भी किया जा सकता है। अगर वो बच्चा समझ पाता है और उसे अच्छे से अपने शब्दों में रख पाता है, तो हमारी उसमें विजय है। इसके लिए डिबेट, जो बहुत बड़े डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें हम इन सब चीजों को देखते हैं कि कैसे वो विरोधी दल के सभी छात्रों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपने बातों को बहुत ही अच्छे से वो रख पाते हैं।
तो ये आलोचना करना अत्यंत आवश्यक है। जो समस्या हमने उनके सामने रखी है उस समस्या का समाधान करना छात्र को आना चाहिए। क्षमा चाहती हूँ। अब यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम छोटे बच्चों के लिए जो कोई प्रोजेक्ट बताइए। सो यहाँ पर समस्या मतलब कैसे बच्चा जो है वह सीखता है। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूंगी कि एक बार प्रोजेक्ट दिया गया कक्षा तीसरी के बच्चों को। कक्षा तीसरी के सभी छात्रों ने कारपूलिंग के ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया। अब वो क्या करते हैं कि मॉनिटर्स हमारे 8-10 जितने भी सेक्शंस हैं वो दो मॉनिटर हर क्लास के नीचे एंट्रेंस पे खड़े हैं और विद्यालय में आने वाली हर कार को वो गिन रहे थे, कितनी कारें अंदर गई कितनी कारें बाहर गई। एक डाटा उनके पास ये आया। दूसरा, उन्होंने हर एक क्लास टीचर से रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज आप आपके पास एड्रेस होते हैं, आपको हमें ये बताना है उस पर्टिकुलर एरिया से कौन कौन से बच्चे आते हैं और ये बच्चे कौन कौन सी कार में आ रहे हैं। और ऐसा करके उन बच्चों की मदद से, टीचर की मदद से ये जो प्रोजेक्ट है वो इतना सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि इसमें बच्चों ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया कि इस क्षेत्र से ये 3 बच्चे आते हैं लेकिन 3 कारों की बजाय 1 कार आ सकती है और हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या थी? बढ़ती हुई गाड़ियां, ट्रैफिक। उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सुंदर ये छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया बच्चे ने, जहां पे बच्चे ने सोचा वहां समस्या है उसके सामने और समस्या के लिए समाधान करने की कोशिश कर रहा है। अब हम कहेंगे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या समझ में आता है? आता है। जब वो ट्रैफिक में खड़े हैं, हॉर्न बज रहा है, तनाव बढ़ रहा है, लेट हो रहे हैं, वो बच्चा इन सब चीजों को समझता है। तो हम उन्हें उनके स्तर पर इन चीजों को बता सकते हैं। एकीकृत अब अभी हम कर चुके हैं कि अन्य विषयों के साथ हम अपने विषयों को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी हमने एक विषय लिया था हिमालय, जहां पर हमने उसे ज्योग्राफी के साथ जोड़ा। चलिए हम अब एक अन्य विषय हम चाहते हैं जिसे हम मैथ्स के साथ जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा विषय है, चैट बॉक्स से हम जुड़ेंगे, कौन सा ऐसा विषय है कि जिसे हम मैथ्स के साथ, गणित के साथ जोड़ सकते हैं। आ जाइए, बहुत सिंपल टॉपिक होगा। देखती हूँ क्या क्या आपके इस मन में विचार आ रहे हैं। कौन सा ऐसा विषय है जिसे हम मैथ्स के साथ भी जोड़ सकते हैं? पर्वतों के आकार। यस हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेप्स। यस। शेप। डिस्टेंस। डिस्टेंस। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। स्मिता मैम। ऑफ लीव। स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ एब्सोल्युटली। कार। वचन। गिनती। यस। स्पीड। स्पीड। यस। संतुलित भोजन। सिग्नल निर्मला टाइमर। देवी शर्मा। यस। while being on signal there is a रंग। timer। संतुलित भोजन। अति उत्तम। उत्तम। संतुलित भोजन में अब अगर हम उसे मैथ्स के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अब यहाँ पे आपका आ गया कि आप कौन कौन से मतलब पौष्टिक आहार क्या है। चलिए, अगर आप इस ककड़ी को, अगर आप इस खीरे को खाते हो तो उसमें कितने विटामिन हैं, कितने उसमें, तो जहां आप उसको बता रहे हो कितने कैलोरीज आप ले रहे हो, कितने की आवश्यकता है, आज कितनी आपके अंदर जानी थी, माइनस करो कितनी नहीं मिली, अब क्या करेंगे। बहुत तरीके हैं बच्चों को अन्य विषयों के साथ जोड़ने के लिए। हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, फूड पिरामिड बहुत फूड उत्तम पिरामिड। बनता है। यस। रेखा चित्र। रेखा चित्र बहुत हिंदी उत्तम। पहेलियां। हिंदी पहेलियां हिंदी बहुत उत्तम पहेलियां। है, बहुत उत्तम है। पहेलियां तो कक्षा में जाते ही अगर आप सुनाते हैं बच्चों के लिए, मतलब बोलते हैं ना, लॉन्ग ब्रेक के बाद बच्चे जहां पर इतने उत्साही होते हैं, उसके बाद आगे जो क्लास में टीचर जाती है उसको उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मुश्किल ऐसे होता है। समय में पहेलियां बहुत अच्छा वरदान साबित होती है। विज्ञापन लेखन बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। चलिए, मुझे तो ये जो प्यार मिल रहा है ये बहुत उत्तम है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी से। राजकुमारी जी धन्यवाद अगर आप जुड़ी हुई हैं। सर, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगी। पिछले वेबिनार के बाद इन्होंने हॉट सीट वाला जो मैंने एक्टिविटी बताई थी, उन्होंने उसे क्लास में किया और उसका वीडियो भी शेयर किया और बच्चों का जो उत्साह था वो सही में देखने लायक था। तो बहुत उत्तम। एंड नाउ शी इज वर्किंग ऑन द वेबसाइट। मैंने कहा था हर टीचर अपनी कक्षा की एक वेबसाइट बना सकती है। सो उस पर भी उन्होंने मुझे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त की और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो वेबसाइट मुझे जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत प्यार के लिए धन्यवाद मैम। गतिविधियां, अनेक प्रकार की गतिविधियां जो हैं वह भी हम करते हैं।
आधारित गतिविधियों पर आधारित हमारी कक्षाएं होना अत्यंत आवश्यक है। ये है आज की मांग कि हम केवल जाएं कक्षा में, चलो बच्चों ये पाठ खोलो, ये पृष्ठ संख्या खोलो और लिखो। बच्चों का मन आज ऐसी टीचिंग मेथोडॉलजीज में नहीं है। आज बच्चा चाहता है, आज बच्चा अनेक तरीकों से पढ़ना चाहता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सी गतिविधियां हैं। समूह के चर्चा के द्वारा आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप लोगों को बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी गतिविधियां जो है हम क्लास में करते हैं। अभी भी बहुत सारे आइडियाज आप लोगों ने शेयर किए। व्यक्तिगत पाठ योजना को सभी छात्रों की जरूरतों पर पूरा ध्यान रखने के लिए व्यक्तिगत बनाना जरूरी। इट शुड बी पर्सनलाइज्ड, मतलब बच्चों का, हर एक बच्चे को हम केंद्रित करें, ये आवश्यक है। नीचे जो आप लिंक देख रहे हैं, ये लिंक जो है ये आपको दिस इज ऑन द वेबसाइट सीबीएसई की, जो आपको ये बताता है कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो किस प्रकार से हम उसमें उद्देश्य जो है वगैरह लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक और समस्या समाधान पे भी हमने चर्चा की, संचार और सहयोग पे भी हमने चर्चा की। मैंने पत्र का एक उदाहरण आप सभी के समक्ष रखा। रचनात्मकता और नवाचार, यहाँ तो मतलब मुझे विनोद सर की याद आती है। जैसे ही शब्द नवाचार आता है और रचनात्मकता की बात आती है तो विनोद सर को हम नहीं भूल सकते। विनोद सर जी बिल्कुल सही चलिए मैम। नवाचार शब्द जो है वो विनोद सर के साथ जुड़ा हुआ है। उनके साथ जुड़ गया है वो जुड़ शब्द। गया है। सो हम अपनी कक्षा में भी नए नए तरीके, नए नए नवाचार, अब नए नवाचार कैसे लाएं? मैम यहाँ पर चलिए मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। कविता जी, रॉय मैम बोल रही है कि मैम आप हमें भी वेबसाइट से संबंधित मार्गदर्शन दीजिए, प्लीज अवश्य हमारा दूंगी मैम, मार्गदर्शन कविता कीजिए। मैम जरूर दूंगी। बहुत इजी है, आप सभी बना पाएंगे। मैं अंत में जरूर बताऊंगी। क्रिएटिव थिंकिंग, यस। अब क्रिएटिव थिंकिंग कैसे इनकलकेट करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे नए नए विचारों को बच्चों के अंदर हम नए नए विचार लाएं, नवाचार से कैसे जोड़ें। ग्रामर भी पढ़ाते समय, व्याकरण भी पढ़ाते समय हम इसे बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए अब मैं आप सबके सामने एक उदाहरण चाहती हूँ कि आप समास पढ़ा रहे हैं। आगे मैं आपको उसका लेसन प्लान दिखाऊंगी, मैंने पूरा तैयार किया है। अब समास पढ़ा रहे हैं, पहले हम समास कैसे पढ़ाते थे। चलिए बच्चों, समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार बता दिए और उदाहरण बता दिए। एंड देन हमने उसके ऊपर बेस बच्चे को जज कर लिया कि ये प्रकार है। अब आपको इसका प्रकार और इसका भेद लिखना आना चाहिए, इसका आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। लेकिन अब जहां हम रचनात्मकता चाहते हैं, नवाचार चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में फिर से जोड़ेंगे। समास मेरा विषय है, समास विषय में हम नवाचार कैसे लाएंगे, रचनात्मकता कैसे लाएंगे, ऐसा क्या करवा सकते हैं हम उनसे। शब्द भी बताने हैं आपको, शब्दों के साथ अगर आप जुड़े तो बहुत मजा आएगा। अच्छा टॉपिक है ना, सब सोच में सब सोच में डूब गए। चित्र बहुत अच्छी, वर्णन जी पद्धति के यस, साथ, पजल्स। पजल, पंक्ति, Child should be able to decide what is right and what is wrong. रॉन्ग, Pankti, grid, yes, ग्रिड grid है, is also a ग्रिड है, very good ग्रिड है। example. देखिए प्रेजेंटेशन तो, संगीत की यस, संगीत की पंक्ति, पंक्ति, स्टूडेंट्स नेम ऑफ समास, 3D 3D मॉडल, बहुत, मॉडल, यस, परिच्छेद लेखन, परिच्छेद, यस, जैसे प्रसून सर ने प्रसून सर सिखाया ने था, यस, सिखाया था। गीत गाकर, यस, गीत गीत गाकर। गाकर, तो सही में गीत के द्वारा तो हम सभी के साथ जुड़ भी पाते हैं और बच्चे उसे याद भी करते हैं। बहुत आर्ट उत्तम, एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। आर्ट स्मिता एंड जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौराहा, नीलकंठ, लंबोदर आदि चित्रों के माध्यम से, बहुत माध्यम उत्तम। से। पूजा जी ने पूरी बात सुनी। क्या आप शिक्षा शास्त्र में नए विचारों के साथ कला एकीकरण के एकीकरण के बारे में? बारे में विस्तार से बता सकते हैं। अवश्य। ज्ञान शैली, ड्रामा नुक्कड़, यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल साक्षात्कार, ये हम पहले भी कर चुके हैं। डिजिटल साक्षात्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज डिजिटल की वजह से ही हम सभी देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, लेकिन जुड़ पाए हैं। तो इसका महत्व, इसका ज्ञान जो है छात्रों को बताना और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा शैली में, अपने शिक्षण पद्धति में इसका इस्तेमाल करना। आजकल तो डिजिटल साक्षर मतलब
कहते हैं ना कि कई प्रोजेक्ट्स, कई असाइनमेंट्स, कई आप गूगल फॉर्म दे सकते हैं बच्चों को, आप क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं, क्विजेस के ऊपर, काहोot के ऊपर। देन हम लोग अलग अलग तरीके से पैलेट करके एक है जहां पर एक ही जगह बच्चा सभी मिलकर आकर एक्टिविटी कर सकते हैं। गूगल वर्ड है जहां पर बच्चा अपने इस कार्य को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है और बच्चा उसके ऊपर अपना प्रकल्प जो है वो तैयार कर सकता है। तो जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं, उस पाठ से संबंधित जितनी भी आप वर्कशीट चाहते हैं, उनमें नयापन लाने की जरूरत है और उसे छात्रों को डिजिटल रूप में जोड़ने की जरूरत है, ताकि छात्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। एमसीक्यूज जब हम देते हैं बच्चों को, एमसीक्यूज में बच्चा सीख रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन में से निकाल के उसे एक ऑप्शन करेक्ट निकालना है, 4 में से एक को चुनना है, तो वो सोच रहा है, उसकी क्षमता जो है उसका विकास हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन पर ध्यान दें। बहुत सारे तरीके हैं, हम गूगल फॉर्म्स देते हैं, क्विजेस क्रिएट करते हैं, पहेलियां, वर्क पहेलियां बना सकते हैं, इवन ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो। वर्ड देयर इज अ वर्ड प्रेस करके बहुत सारे हैं। देन देयर इज जहाँ पे आप शब्द जो हैं, विलोम है, पर्यायवाची हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे जो हैं, हमें नए नए अगर आप चाहिए तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी ऐसे सारे लिंक्स, जिससे हम इस प्रकार से बच्चों को असाइनमेंट जो है वो हम नए तरीके से इन छात्रों के साथ बांट सके। अब ये सभी हम कर चुके हैं, दक्षताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि छात्रों को विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, मानविकी के साथ हम विशेष उनका विशिष्ट ज्ञान और कौशल विकसित कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ बताया कि एक छात्र जिसके पास मजबूत आलोचनात्मक सोच और समाधान समस्या कौशल है, वह काम पर किसी समस्या को हल करने का नया और अभिनव तरीका विकसित करने में सक्षम हो सकता है। दैट इज द रीजन आजकल आईआईटी में बच्चों को ये कहा जाता है कि बच्चों कम फॉर द रिसर्च, क्योंकि रिसर्च जो बच्चा करेगा, रिसर्च करने के बाद आज हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो देश के लिए रिसर्च करके नई चीजों को हमारे सामने लेकर आए। तो वो जो ज्ञान है, वो जो बोलते हैं ना जिज्ञासा है, वो अभी से उनके अंदर भरनी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि लैब जो है वो केवल पहले बच्चों के लिए, मतलब केवल बड़े माध्यमिक कक्षाओं के छात्र जाते थे, लेकिन अब उनको सभी छात्रों को दिया जा रहा है प्रयोग करने के लिए, ताकि बच्चा जाने। वर्चुअल बहुत ज्यादा जो लैब्स हैं, बहुत सारे सैंपल्स है जहाँ पे बच्चा जो है ओपन जाकर उनको देखता है। कुशल संचारक और सहयोगी, अगर आप एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट अगर आप कक्षा को देते हैं, तो वो बच्चा जो है टीम वर्क सीखता है। टीम वर्क में एक अच्छे नेतृत्व क्षमता जो है उसमें जो आनी चाहिए, वो नेतृत्व क्षमता उस छात्र में पनप रही है, जैसे हम छोटी छोटी गतिविधियां जो उन्हें कक्षा में करने के लिए देते हैं। रचनात्मकता और अभिनव की वजह से एक नया व्यवसायिक विचार और एक नया उत्पाद लेकर छात्र जो है वो आ सकता है। दैट इज द रीजन हम देखते हैं कि आजकल लोग जो है बाहर चीजें जो मिल रही है उसकी जगह कस्टमाइज में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से जो वो चाहते हैं उसमें वो नई क्रिएटिविटी लाकर वैसे उत्पादन की मांग कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो जगाना अत्यंत आवश्यक है। आज रास्ते में आते हुए मैम, एक कार जो है वो बीच में बंद पड़ गई थी। अब बीच मतलब हाईवे में कार बंद है, तो ड्राइवर ने क्या किया, कार को वहां तो बंद हो गई, अब क्या करे, वो आकर पीछे बैठ गया, कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया एंड सबको हाथ दे रहा है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। कि मतलब दिस वाज सो नाइस कि अगर वो अंदर बैठा होता पीछे वाले हॉर्न बजाते, लेकिन ये पीछे आकर बैठ गया और बहुत अच्छे से सब लोग चले गए एंड वो भी मुस्कुरा रहा है। इस परेशानी में भी वो अत्यंत प्रसन्न नजर आया। मैम उसको भी एक वो एंजॉय कर रहा है, वो कहते हैं ना परेशानी को भी एंजॉय करके उसने अपनी बहुत परेशानी अच्छे से हल्की कर ली। ये भी बिल्कुल सीखने वाली हल्की कर, चीज है। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे आते हुए इतना अच्छा लगा ये। एक छात्र जो डिजिटल रूप से साक्षर है, अपनी पसंद के किसी भी कारण को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट या सोशल मीडिया अभियान बना सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही रीजन है कि आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें केक बनाना आता है, कुकीज बनाने आते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे फोटोग्राफी में और प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे हैं, और वेबसाइट के द्वारा वो अपने इस छोटे से काम को अभी से इस आयु में ही उन्होंने उसे इतना बड़ा बना दिया है कि वह पैसा कमा रहे हैं।
बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चों के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, बच्चे जो है लोगों को अंदर आकर्षित कर रहे हैं, ये कला है। तो ये डिजिटल रूप से अगर बच्चा साक्षर होता है तो वह भविष्य उसका जो है, आज बच्चा अगर आज हम देखते हैं तो आज एक ही व्यवसाय पर कोई भी संतुष्ट नहीं है, साइड बाय साइड वो लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और जिसके द्वारा वे धनार्जन भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तो है ही, साथ में अपनी इच्छाओं, अपनी कौशल का भी वो विकास जो है वह बखूबी कर रहे हैं। 21वीं सदी में सफल होने के लिए छात्रों के लिए प्रमुख दक्षता आधारित शिक्षाएं आवश्यक हैं और इसके लिए इन दक्षताओं को विकसित करके छात्र उन चुनौतियों और अवसरों के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें उस भविष्य के लिए तैयार करें। ये हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम जब हम संबंधित अवधारणाएं बनाते हैं, जो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सुने, पढ़े, देखे और खोजे, ज्ञान, तथ्य, अवधारणाएं, कौशल, प्रक्रियाएं, पद्धतियां, तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं और सोच समझकर चुनी गई बातें, ऐसी चीजें जो पाठ के मूल ज्ञान भाव से संबंधित है, जिन पर उसका आधार है, वे बड़े और मुख्य विचार जो विद्यार्थियों को हमेशा पता होने चाहिए। मेन सेंट्रल आइडिया, मेन पार्ट जो हम चाहते हैं कि इस पाठ में ये चीज तो बच्चों को आनी ही चाहिए, उसे हम कैसे बार बार उन तक पहुंचा सकते हैं। अब एक उदाहरण आपके सामने है कि हम गतिविधियां तो कर रहे हैं। अब गतिविधियां करते समय एज मतलब एक शिक्षक होने के नाते क्या मेरे पास एक मानदंड है या मेरे पास एक रूब्रिक्स है जिसके आधार पर मैं बच्चों का मूल्यांकन कर रही हूँ? उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार वार्ता। हमने समाज सेवा के नाम पे बच्चों से कहा कि बच्चों आपके आसपास जितने भी समाज सेवी हैं उनसे बातचीत कीजिए, वे कहाँ मतलब वहां पर कितने समय से काम कर रहे हैं, उनके काम में उन्हें कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, राइट। इस प्रकार से हमने उनके सामने काम रखा। अब छात्र ने अनौपचारिक तरीके से साक्षात्कार लिया और एक और दो प्रश्न पूछना भूल गया। तो क्या हमारे पास एक ऐसा मानदंड है जिसके आधार पर हम हर एक कक्षा में जो बच्चे हैं उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनका मूल्यमापन कर रहे हैं कि एक बच्चा हो सकता है उसने एक दो प्रश्न नहीं पूछे, वो भूल गया, दोनों पक्षों के उत्तरों को ठीक से ग्रहण कर प्रश्न ना पूछ सका। तो क्या क्या तरीके हैं? अगर हम तुलनात्मक अध्ययन उन्हें दे रहे हैं तो क्या छात्र पूरे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो तुलनात्मक अध्ययन पूरा नहीं कर पाए और वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने तुलनात्मक अध्ययन के सभी मुख्य बिंदुओं को शामिल कर लिया होगा, और कई ऐसे होंगे जिन्होंने सब किया लेकिन एक कहीं मुद्दा छूट गया। अब ये जो रूब्रिक्स हम बनाते हैं, मानदंड जो बनाते हैं, ये हमारे लिए होमवर्क है, ये हमारे लिए गृह कार्य है। ये हमें ये बताता है कि मेरी कक्षा के इन छात्रों का मूल्यमापन मुझे इस तरीके से करना है, ये यहाँ पर है और मुझे यहाँ से इन्हें आगे ले जाना है, ये इनकी क्षमता है और मुझे इनको आगे बढ़ाना है। इनके साथ आपको समय व्यतीत करना होगा और इनके जब आप इनको निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों में वैसे परिवर्तन करने होंगे। सो अगर हम ऐसा एक प्रकार मतलब करते हैं इस प्रकार से एक्टिविटी तो वो बहुत ही सहायता करती है। बहुत ही सुंदर एक चित्र आप सभी के समक्ष है, मैं चाहती हूँ कि इस पर प्रतिक्रियाएं आए। इस चित्र को देखते ही हमारे मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं? परोपकार, बहुत उत्तम। हेल्पिंग, यस, हेल्प। हेल्पिंग, हेल्प, एम्पैथी, बहुत सुंदर। सहयोग, डेंजरस, हेल्प यस, डेंजरस, हेल्प, जीवन जीवन मूल्य, मूल्य, बहुत। मानवता, सपोर्टिंग, व्हाट यू गिव टू अदर्स, यस। मनुष्यता, संतुलन, संतुलन, बहुत उत्तम। देखिए कहाँ ह्यूमैनिटी, कहाँ से ह्यूमैनिटी बहुत डेंजरस एंड ये तो सोचा नहीं है, और वो अलग व्यूज आए हैं सबके। नीडीनेस, नीडीनेस, नीडनेस, यस। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, शेयरिंग, केयर। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। अब यहाँ पर जैसे ये चित्र मैंने आपके समक्ष रखा, बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। यही होता है जब हम कक्षा में बच्चों के सामने कुछ नया शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे। अब यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पर एक सामान्य एक शब्द जो सभी ने बोला वो था मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, राइट। अब अगर आप कक्षा 10वीं को पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हम उसे पढ़ाने से पहले उसे इस तरीके से लेके चलें, एक माइंड मैप बनाया जाए।
माइंड मैप में सबसे पहले शाखाएं क्या होंगी? चलो, मानवता शब्द आते ही आपके मन में क्या क्या भाव उठे? दयालुता, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, एकता, समानता। अब दया है तो क्या है? दया क्या है? करुणा क्या है? सहानुभूति क्या है? प्रेम क्या है? एकता क्या है? समानता क्या है? अब उसके बारे में आप दो दो तीन तीन शब्द बताइए। ये बताने के बाद जब बच्चा ये लिख पाता है कि वो क्या है दया, उसके अनुसार दया शब्द क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, सहानुभूति क्या है, उसके बाद आप बच्चे को बोलिए चलिए बच्चा अब इसके ऊपर उदाहरण लिखते हैं। दया के बताइए, चलो एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, 2 उदाहरण दे दीजिए। जब बच्चा वहीं पर बैठा माइंड मैप कर रहा है, मनुष्यता पाठ पढ़ाने से पहले, कविता पढ़ाने से पहले हमने उन मुद्दों को बच्चे के सामने रख दिया जो वो आपस में उसके आसपास, जन जीवन में आसपास वो घटित होते हुए देख रहा है। अब इसके बाद जब हम इसकी आवश्यकता पर बात करेंगे, तब बच्चा जो है कविता तो समझ रहा है, मानवता समझ रहा है, लेकिन आवश्यकता क्या है? उन जीवन मूल्यों को समझे जो उसे जीवन में आगे काम करे। सिचुएशंस देते हैं, केस स्टडीज दीजिए आपके सामने अगर ऐसा हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो जब हम बच्चों से इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मांगते हैं तो छात्र जो है वह सोचने पर मजबूर होता है और वो सही कदम उठाता है, और यही हमें बताता है कि छात्र जो है किस प्रकार से सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं या सही में उसे अपना रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा, कई बार जब हम जाते हैं कि हमें कोई काम करवाना है तो हम एक बच्चे को पर्टिकुलर बुलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बच्चा कभी भी हमसे, मतलब वो बच्चा गलती नहीं करेगा, वो बच्चा तुरंत अच्छे से उस काम को करेगा, क्योंकि वो चरित्र उसने अपना निर्माण किया है, ये उसका विश्वास है जो उसने जीता है सबसे। तो ऐसा चरित्र निर्माण जो है वो हम इन कविताओं के माध्यम से कर सकते हैं। एक उदाहरण अभी आत्मविश्वास हमारे पास सामग्री के रूप में आ गया, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, मार्कर। गतिविधियां हमने ले ली कि छात्र जो है कविता का परिचय देकर शुरू करेंगे। पहले इस कविता के बारे में सुना, क्या आपने क्या इससे जानते हैं इस बारे में? कविता को हमने सस्वर वाचन किया, मुख्य विषय पहचानने के लिए कहा। समूह चर्चा, अब उसके ऊपर समूह चर्चा करवाइए। उसके बाद कक्षा में छात्रों से कहिए कि आप अपने उन विचारों को, कि आत्मविश्वास क्या है, अब उसके ऊपर उनको अपने विचार साझा करने दीजिए, उन्हें चिंतन करने दीजिए, सोचने दीजिए कि छात्रों से आत्मविश्वास के बारे में जो उन्होंने सीखा है उन पर विचार करने के लिए कहिए। उसके बाद जब वो समूह चर्चा जो वो कर रहे हैं, उन्हें कहिए चलो बेटा अब आपको कक्षा में सबको बताना है। कविता की समझ का आंकलन करने के लिए, उसको निरीक्षण करने के लिए कि सभी ने जो अपने अपने विचार कहे उससे आपने क्या जाना, एक, और उसके बाद क्या बच्चा उसी विषय के ऊपर एक अनुच्छेद लिख पाता है। तो ये फैसिलिटी हमें उन्हें देनी है कि वो सोचें। सीधा जाकर आत्मविश्वास विषय है, चलो हम ये 10 लाइनें हैं, ये आप इसे याद कर लो, इसे लिख लो और अनुच्छेद पूरा हो गया। ऐसे बच्चा आत्मविश्वास क्या है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से निराशावादी को आशावादी में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे आत्मविश्वास जो है, मनोबल जो है हम बढ़ा सकते हैं, विभिन्न उदाहरण आपके सामने आते हैं और यही विभिन्न उदाहरण आवश्यक है। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने कि परीक्षा के बारे में सोचते ही मेरी नींद 9-2-11 हो गई और मैं किताब खोलकर बैठ गई। अब ये जो मुहावरा हमने दिया, बच्चे को सोचने दीजिए कि क्या इस वाक्य में 9-2-11 होना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है? यदि हाँ, तो कारण बताओ बच्चा, चलो लिखो 50-60 शब्दों में, और यदि नहीं तो क्यों? अब बच्चा अंतर समझेगा, उसकी गहराई को समझेगा। बाद में अगर हमें कोई एक विषय उठा लीजिए, आंख ले लीजिए, कान ले लीजिए, अक्षर ले लीजिए, पढ़ाई ले लीजिए, चलो बच्चा दूसरा ग्रुप जो है वो उन पढ़ाई शब्द के ऊपर पढ़ाई से मिलते जुलते मुहावरों को ढूंढ रहा है। मुहावरे जो हैं, बच्चा सिर्फ हम जाएं मीनिंग बताएं और बच्चा उसका याद करके वाक्य लिख दे, उसमें बच्चे को वो इतना नहीं सीखता जितना हम उसे अगर पिक्चर फॉर्म में दिखाते। एक बहुत सुंदर पीपीटी ग्रुप में शेयर हुआ था जहां पर पिक्चर के द्वारा जो है वो मुहावरे जो है लिखे गए। अब अगर वैसे तरीके से या फिर एक सूची बनाए, चलो पढ़ाई के ऐसे आंख के, कान के, नाक के, राइट, तो बच्चा जो है बहुत सारे जो है उसके पास मुहावरे होंगे। आज एक एक दिन सभी को मौका दीजिए और बच्चा जो है वो उसके ऊपर विषय अपने विचार जो है वह प्रस्तुत कर पाएगा। चलिए, क्या देखा हमने? पहले जो हमारा प्रारूप था उसमें शिक्षक निर्देशित थे, विषय केंद्रित होता था, जितना भी
पाठ योजना जो हमारी होती थी वो विषय केंद्रित होती थी, आज वो केवल छात्र केंद्रित है। पहले शिक्षक निर्देशित थी, आज शिक्षक सहयोगी है, इट्स अ हेल्प फॉर अस। पाठ्य पुस्तक पर आधारित थी, आज हम पाठ्य पुस्तकों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है, आज हम उसे अन्य विषयों के साथ जोड़ रहे हैं और अलग अलग स्रोतों का प्रयोग करते हुए उस विषय को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निर्धारित सीखने के लिए परिणामों पर ध्यान केंद्रित हमारा सिर्फ ये होता था, आउटकम क्या होगा। अब समग्र विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास, जिसमें हम संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और उसके शारीरिक विकास को पूरी तरह से शामिल कर रहे हैं। एक उदाहरण में जब आपको बोल रही थी कि समास, पहले हम इस तरीके से रखते थे, समास के प्रकार बता दिए, उदाहरण बता दिए। आज जब हम प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, गंगा, ज्ञान गंगा पर छात्र कविता लिखे, आनंद धारा के ऊपर बच्चा कविता लिख दे, प्रकृति दृश्य के ऊपर वह दृश्य बनाए और दृश्य बनाने की कोशिश करे। जब हम इसमें नयापन लाएंगे, आप अपने ही बनाए हुए लेसन प्लान्स को रखिए और उसके बाद आगे उसमें क्या बदलाव हम ला सकते हैं उसे देखिए। प्रश्नों को पूछने के तरीके हमें बदलने चाहिए ताकि बच्चा सोचे, उसमें नयापन आए, वो गहराई से सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। और शब्द के अर्थों को पहचानिए, ये साधारण तरीके का हमारा प्रश्न है जो हमेशा हम पूछते हैं। अब उसे हम अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास एक कलम और किताब है, परंतु पहले मेरे पास और किताबें भी थी। अब इस वाक्य में बच्चे को प्रश्न करना है कि बताओ बच्चा, यहाँ पर ये शब्द जो है, इस वाक्य में किस शब्द को दो जगह पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। बच्चा सोचेगा और सही उत्तर का चुनाव करेगा, उस अर्थ को समझेगा। दिस इज अनदर एक लिंक आपके सामने है कि स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है। ये स्टोरी बोर्ड जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, कोई भी आप विषय उठाइए, प्रदूषण उठा लीजिए, या फिर आसपास जो भी समस्याएं हो रही हैं, कार से संबंधित है, या बच्चे जो हैं निराश हैं, बच्चे बहुत उत्साही हैं, खेल से संबंधित है, त्योहारों से संबंधित है, वो कक्षा में दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए। और पढ़ने के बाद कक्षा में जब हम उनसे प्रतिक्रियाएं मांगते हैं, तो छात्र जो है वह, एक तो वो सीख रहा है कि ये संवाद कैसे हो रहा है, संवाद में किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के थ्रू जो है उसको सीखने में बहुत आसानी हो रही है, और वो बच्चा जो है तुरंत आपकी बात को ने जो आपका उद्देश्य है, जो आप चाहते हैं, आउटकम जो आप चाहते हैं, वो आसानी से मिलेगा। पर्यावरण की सुरक्षा पर हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको उदाहरण दे चुकी हूँ, इस पे समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। सीखने के उद्देश्य बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारे आउटकम्स क्या हैं। जब हम इसका अंतर समझ लेंगे, तभी हमारा पाठ योजना जो है वह सही हो और उत्तम हो। हमें ये सुनिश्चित करना है सीखने के उद्देश्य के समय कि आपके सीखने के उद्देश्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हो। छात्र क्या करने में सक्षम होंगे, यह वर्णन करने के लिए क्रियाओं का प्रयोग करें। तो आपका आउटकम क्या होगा, सुनिश्चित करें कि आपके सीखने के परिणाम अवलोकन योग्य और मापनीय हैं। यह प्रदर्शित करने के लिए कि विद्यार्थियों ने सीखने के परिणाम को प्राप्त किया है, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, यह वर्णन करने के लिए विशिष्ट मापदंड का उपयोग करें। जब आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब फटाफट हम एक लेसन प्लान करेंगे। खूनी हस्ताक्षर कविता हम सभी ने पढ़ी है। इस खूनी हस्ताक्षर कविता के आधार पर अब ये हमारा लेसन प्लान का एक छोटा सा प्रारूप है। मैं यहाँ पर, ये सभी तो आप जानते हैं बहुत, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि हम आए विषय एकीकरण पर। इसी कविता के आधार पर विषय एकीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला लेंगे हम अन्य विषय। चलिए चैट बॉक्स के थ्रू जुड़ेंगे। खूनी हस्ताक्षर कविता हमें पढ़ानी है, उस कविता में अन्य विषय, आर्ट इंटीग्रेटेड, यस, बहुत खूब, हिस्ट्री, यस, इतिहास के साथ, यस, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना, साइंस, यस, इंग्लिश, यस, जीके, यस, बहुत खूब, बहुत खूब। अब कला दृश्य, सॉरी क्षमा करें, दृश्य कला, पोस्टर बनाना, नारे लेखन,
ये भी हम म्यूजिक, कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, सोशल साइंस, मैम काफी सारे जवाब आ रहे हैं। और बहुत सोशल बहुत लाइफ बहुत एंड कल्चर, यस, ठीक है, कल्चर से मनोविज्ञान, यस, कैलीग्राफी, ओ मनोविज्ञान, वेरी गुड, क्रिएटिव राइटिंग, सिंगिंग, एब्सोल्यूट ड्रामा, एब्सोल्यूट, सिंगिंग इज म्यूजिक। आल्सो वेरी नाइस। आज भी यस हमारे टीचरों ने, जैसे हमें शिक्षकों ने पढ़ाया था, आज भी हम वो भूले नहीं उनका अंदाज। बिल्कुल सो बिल्कुल मैम। वो इतना दिल को छू गई हैं वो भावनाएं। प्रदर्शन, कला, नृत्य, गीत आदि एंड आईसीटी। आईसीटी के साथ भी हम इसे बहुत ही बखूबी जोड़ सकते हैं, जहां पर हम उन्हें बता सकते हैं। चलिए, गतिविधियां, किस किस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। क्विज, देखिए कि नारा लेखन, क्विज, नारा लेखन, यस, डिबेट, डिबेट, बहुत उत्तम, स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय, रोल प्ले, रोल प्ले, रीता यस, शर्मा मैम, रोल प्ले या पोस्टर मेकिंग, डिक्शनरी एक्टिविटी, यस, स्मिता जी बहुत उत्तम, मधु जैन कक्षा मैम में कह रही है नाटक, नाटक या रोल प्ले, डिक्लेमेशन, ड्रामा। बहुत सुंदर, डिक्लेमेशन इज अ वेरी गुड, ये तो करना ही चाहिए, नाटक, स्मिता, थैंक यू मैम। एक्सपीरियंशियल, यस यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल प्ले, यस, संवाद, संवाद, यस, संवाद बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम इसमें। रोल प्ले, एकांकी, उत्तम। एकांकी, देखिए हमारे पास कार्टून स्ट्रिप्स, यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। फैंसी ड्रेस, फैंसी ड्रेस, कहानी कहानी लेखन, लेखन, बहुत उत्तम, नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक, नाटक, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, यस, चित्र चयन, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, कितनी अन्य आसानी उदाहरण, से। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उद्देश्यपूर्ण, जब हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, उद्देश्य जो हमने रखे उनके सामने, अब यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, अब ये क्या है? छात्रों का प्रतिबिंब, कि जो हमने कविता पढ़ाई उसके बाद क्या है जो हमारा छात्र अच्छे से समझ गया है, क्या है जो हमारे छात्र को नहीं आता, और क्या है जो हमारे छात्र को मतलब बताने की। सो ये रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड मतलब रुक गया, नहीं आ रहा है उसे, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई समस्या है। सो जब हम इस प्रकार का छात्र से, ये एक अलग अलग तरीके से किया जाता है, एग्जिट टिकट आप देते हैं बच्चों को कि चलो बताओ इसमें क्या क्या आ गया आपको, क्या नहीं समझ में आया, और किस प्रकार से कौन सा ऐसा विषय है जहां पर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से उनसे एग्जिट लेते हैं, एग्जिट स्लिप लेते हैं, या उनका हम रिफ्लेक्शन मांगते हैं, या हम उनसे प्रतिबिंब मांगते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि हम अगली योजना के लिए शिक्षक का टेक अवे है। हम हर बार पाठ योजनाएं बनाते हैं। आप सभी से मेरी विनम्र विनती है कि जब भी आप पाठ योजना बनाते हैं, उस पाठ योजना को कक्षा में करने के बाद, आने के बाद 1 मिनट उस पर जरूर बिताइए और ये देखिए कि क्या था ऐसा जो सफल नहीं हो पाया। हम टीचर्स हैं, हमारे विद्यालयों में अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, अचानक कभी क्लास कैंसिल हो जाती है, कभी एग्जाम हो जाता है, कभी हम अस्वस्थ हैं, तो अनेक कारणों से हमारी कक्षाएं जो हैं नहीं हो पाती। लेकिन आपने जब इस कक्षा को किया, पूरे खूनी हस्ताक्षर आपने कविता पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद, आने के बाद हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये मैं ऐसा कर सकती थी। तो वो आप क्या कर सकते थे उसका यदि आप एक नोट बनाकर रख लें और अगली बार उसे अपने पाठ योजना में शामिल करें, तो इससे बहुत अच्छे जो है वह सहायता जो है आपको भी मिलेगी, और हम भी, वी ऑल ग्रो, बहुत ज्यादा जरूरी है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और इन गलतियों से अगर हम बचते हैं, समय पर हम अपना पाठ तैयार करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपलसरी है स्कूलों में, कई स्कूलों में कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी पूर्व तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करें, ताकि हम उस 40 मिनट में 1 मिनट भी यहाँ से वहां ना करें। अब ये पिक्चर जो है, चलिए अब मैं इस पे आप सभी की प्रतिक्रियाएं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये क्या आप समझ पाए। थोड़ा सा, इट्स अ बल्ब, ओके, और क्या है ये चित्र जो है वो क्या? आइडिया, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, थीम, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, यस, ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग यस, बल्ब, एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स स्टूडेंट कैटेगरी, कैटेगरी, ओके,
स्कूल से इससे अलग अलग सोचो और करो, हाँ परफेक्ट टीम वर्क, क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, यस, how interactive is my class here? Yellow येलो अंडरस्टैंड understood can move ahead, yes. कोऑर्डिनेशन, पर्यावरण, पर्यावरण कैसे, रंगों की पहचान, ओके, बहुत सारे विचार हम में आए। एक सिंपल सी बात है कि हम जब भी कुछ करने बैठते हैं, ऐसे न जाने कितने कागजों को हम ऐसे करके फेंकते हैं, लेकिन कोई एक कागज होता है जिस पर हम वो लिख पाते हैं जो हम चाहते हैं। चाहते हैं। ज्ञानी चाहे तो सबको उजाला, परफेक्ट इज द आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्ञान बांटना, बहुत, यस, ज्ञान बांटना, परफेक्ट, बहुत सुंदर, लुकिंग बल्ब, यस, अपनी प्रभा का प्रभाव, यस, सूर्य की किरणों का विकिरण, यस, बहुत सुंदर, ग्लोइंग लाइट। ग्लोइंग लाइट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यही मैं आप सभी से विनम्र विनती करती हूँ कि हम बहुत सारे लेसन प्लान बना रहे हैं, बहुत सारे उसमें चाहते हैं कि ऐसा चेंज आए, ये चेंज आए, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है 3C। अब ये 3C कौन से, हम सभी जानते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और बच्चों का कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ क्या सिर्फ यही है, हम इसमें ई को भी जोड़ सकते हैं, एंगेज करना है बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करना है, ताकि वो अपनी बातों को अच्छे से हमारे तक पहुंचा सके, वो एक्सप्लेन कर सके, एलेबरेट कर सके, और तब कहीं जाकर उनका इवैल्यूएशन संभव होगा। इससे होगा क्या, हम अपने देश के विषय में आए, 4-5 को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इंडियन, हम अपने देश की हर विशेषता को समझें, हम अपने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करें, ताकि वो ऐसे नागरिक बने कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने आप को सफल, जो है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, इम्पैक्टफुल, वो जहां भी जाए अपना प्रभाव जो है समाज के ऊपर जमा सके, हमेशा इंटरैक्टिव हो, बात कर सके, उनके मन में किसी प्रकार की हिचक ना हो कि मैं कैसे कहूं या मैं कैसे बोलूं। जहां हमारे बच्चों के मन से हम ये दूर कर देंगे, वो बहुत अच्छे से, एंड इंक्लूसिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम ये सभी कर पाएंगे तो हमारे छात्र जो है बहुत ही बड़ी सी एक स्माइल के साथ, बड़े से विश्वास के साथ वह देश के कोने कोने में चमकेंगे, देश का नाम रोशन होगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो नारा है वह आसानी से संभव होता हुआ नजर आएगा। ये मीडिया का कमाल है कि आज जगह जगह से न जाने कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, अलग अलग लोग जो हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन विश्व के कोने कोने तक कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से यही सहयोग रहेगा कि आप इसी प्रकार अपने विचार साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार सत्र था मैम, ये बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली और बहुत रोचक था। सबसे बड़ी बात मुझे वो अनुच्छेद लेखन वाले आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मैम, मैं जरूर उस पर काम करूंगी कि अनुच्छेद लेखन कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे हमारी जो सृजनात्मक गतिविधियां हैं वो तो बच्चे कर ही लेते हैं, अनुच्छेद में वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो ये गतिविधि मुझे खुद को बहुत अच्छी लगी, मैं उस पर जरूर काम करूंगी। एंड धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा बहुत बहुत था धन्यवाद। जी। मैम हम अपना प्रश्न उत्तर खंड शुरू करना चाहेंगे, तो प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। आप जो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे वर्चुअल हमारा हैंड रेज है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपने प्रश्न हमारी सुनीता मैम से पूछ सकेंगे। कविता रॉय, कविता रॉय मैम, मैम आप अनम्यूट करेंगे? कविता मैम। जी थैंक यू वेरी मच मैम। मैम मुझे कहना है थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहले आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हिंदी के लिए ऐसे बहुत कम होते हैं मैम। हमारी आवाज आ रही है मैम आपको? जी मैम जी। जी मैम मुझे कहना है कि जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी, जैसे अभी तो आया है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान होना चाहिए, यहाँ तक कि प्रश्न पत्र भी वैसे ही होना चाहिए। और कभी कहते हैं कि 5E जो है वो लेसन प्लान होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैम कौन सा यूज करना चाहिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लान है वो, या तो 5E के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहिए?
और उसका कोई निश्चित फॉर्मेट है, या मेरी बात नहीं समझ में आ रही? फिर से बोलूं मैम? नहीं नहीं मैम, आपकी बात समझ में आ गई है। जी जी। आधार था, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी आधार था। अब उसमें हमें हमारे सिर्फ प्रश्न पत्र में थोड़ा सा बदलाव लाना है। बदलाव क्या लाना है, जो मैंने आपको उदाहरण सामने दिए कि पहले हम सिर्फ समास क्या है, समास के भेद, विलोम शब्द, बच्चा सिर्फ जोड़ रहा है, सामने विलोम शब्द लिख रहा है, वो ना पूछते, हम सिर्फ उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। आज हमारा उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। मार्क्स इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो महत्व देना है आपको। तो यहाँ जो आप जो 5E की बात हो रही है, ये कक्षा में आप इसे अपने लेसन प्लान में इन्वॉल्व करें, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैम 5E है ना, टोटली ऐसे मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी आई है, उसी के पहले चाइल्ड सेंट्रिक पूरा की पूरा है मैम। जहाँ से यस, शुरू होता है, शुरुआत से जब शुरू होता है तो वहीं से शुरू हो जाता है कि पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, यहाँ पर जहाँ तक हमने पढ़ा है, और हमारे विद्यालय में हमेशा ही 15 दिन के 15 दिन मैम हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग और वर्कशॉप होते हैं। CBSE की स्कूल है मैम हमारी, तो उसमें है ना मैम अभी ब्लूम टेक्सोनॉमी बता रहे हैं, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी मुझे ऐसा लगता है कहीं तभी हम बांध दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन 5E में कैसे है मैम, बच्चों को एकदम खुला छोड़ दे रहे हैं ताकि उनका नव निर्माण कौशल हो। जैसे हम सेब बताते हैं बच्चों को कि ये सेब है, ऐसा कलर होता है, वैसा कलर होता है। लेकिन 5E का लेसन प्लान हमें जहां तक लगता है, हम CBSE के टीचर को, कि जैसे सेब हम सामने ला के रख दे रहे हैं कि बच्चों ये सेब है, अब देखो आप खाना चाहो तो खा सकते हो, इसका टेस्ट भी ले सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी मैं इसका विरोध नहीं करना चाहूंगी, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये क्या चाहती है, क्योंकि अभी जब यानी चेंजेस हुए 2 साल 3 साल पहले, और उसके 6 साल पहले जब 5E का लेसन प्लान आया, फिर 6E का लेसन प्लान आया, तो मुझे लगता है कि हमने कौन सा यूज करना चाहिए। तो क्या 5E के लिए, जैसे आप इतने बड़े मंच से संबंधित हो, तो आपको नहीं लगता है कि मैम कि 5E जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही रूप से परिभाषित करता है? सर, कैन यू हाईलाइट ऑन दिस, what exactly they are supposed to follow? Actually, there is no particular format for a lesson plan. You can follow any format. The ultimate objective outcome should be students' competency. You should focus on students' thinking skills and their competency. You follow any type of format in lesson plan 5E or whatever. Our objective, our aim is to enhance the competency of students, for which you adopt any methodology, any kind of format for lesson plan. I think that should suffice the answer. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू कविता मैम, थैंक यू। शायद से आपको ये मेरा लेसन प्लान जो मैंने शेयर किया, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने बहुत सारे लेसन प्लान को स्टडी किया था। मेरे पास मेरे पास मेल में कम से कम 20 से 25 ये थे लेसन प्लान। सबको स्टडी करने के बाद मैंने कुछ मुद्दे उठाए ताकि मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर सकूं। जी जी, ये नहीं एक बहुत बढ़िया लिया मैम, थैंक हाँ। जी मैम हम हमसे साझा कीजिए ना, अवश्य कैसे मैम। मैम हम लोग भी करते हैं, हम जैसे बनाते हैं ना यहाँ पे, तो कैसे मैम सर ने हमें तो बीटेक इतना बड़ा, जैसे हम एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, आप जैसे मार्गदर्शक है हमारे साथ में, तो और ज्यादा विस्तार, जैसे विस्तार कर सकते हैं हम अपने ज्ञान को। तो मैम आप साझा कीजिए ना। और आपने हमें शुरुआत में, हमने बीच में कहा था आपसे कि वेबसाइट से कैसे जुड़ सकते हैं, हमारा स्कूल का तो वेबसाइट है, लेकिन कक्षा को वेबसाइट से कैसे जुड़ सकते हैं, मैम आप बताने वाले थे। खुद बना सकते हैं आप। मतलब बनाने के लिए आप अपने ईमेल आईडी में ड्राइव में जाइए, गूगल आपका जो ड्राइव है, ईमेल के जब आप उसको हाँ ओपन करते हैं तो आपका जी ड्राइव है। आप उस ड्राइव में जब आप जाते हो, लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उस ऑप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिखाई देता है, गूगल शीट्स दिखाई देता है, उसी में नीचे आइए, उसमें वेबसाइट भी दिखाई देता है। जी जी मैम। एंड देन उसके बाद आप सिर्फ अपना फीड करते जाइए जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हम इतनी गतिविधियां करते हैं कक्षा में, तो आप उस गतिविधियों की, आपके पास पिक्चर्स भी होती हैं, आपके पास रिपोर्ट्स भी होती हैं, डेट को, कौन सी डेट को क्या किया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। आप मतलब हर साल इतना कुछ कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं 4 साल, अरे ये बहुत अच्छा हुआ था, इसको मैं फिर से करके देखती हूँ, तो आपके पास अपने बहुत सारे रिसोर्सेज तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो मैंने साझा किया था। थैंक यू वेरी मच मैम। कुछ नया या लगा ना, जहाँ पर लगता है तो हम सीखने की कोशिश करते हैं। अवश्य मैम, अवश्य मैं देखती हूँ अगर थैंक मैं यू वेरी आपकी, मच आप लोगों मैम। को। जी जी ठीक है, मैम, प्लीज गाइड कीजिए ना मैम, ग्रुप पर भी गाइड सर। एक मिनट मैं करती हूँ, दिखाती हूँ।
मैम जैसे ही आप यहाँ पे गए, ये आपका गूगल ड्राइव खुल जाता है। गूगल ड्राइव खुलने के बाद आपने यहाँ पे न्यू किया। यहाँ पे जी जब मैम। आप जाते हैं, इसमें मोर में जाइए। मोर में जब आप जाएंगे, तो मोर में जाने के बाद ये गूगल साइट्स आ गया। जी मैम। अब यहाँ पे ये आपका पेज बन गया। यहाँ पे आप अपनी क्लास का डालिए। यहाँ पे आप उसका कुछ इमेज चेंज करना चाहते हैं, आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप इसको पूरा नीचे तक जब आप स्टडी करेंगे, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब मैंने ये आपको सैंपल शेयर किया है। अच्छा, ये गूगल क्लासरूम जैसा नहीं है ना मैम? ये जैसे नहीं हमारा नहीं नहीं, ये गूगल क्लासरूम जैसा नहीं। वेबसाइट है। ये देखिए, यहाँ ओके। टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इमेज आपको जो डालनी है आप वो डाल सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको कभी भी अपनी रिपोर्ट्स चाहिए, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप देख सकते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। जी अगला हम लेते हैं रीता शर्मा मैम। रीता मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही हमें नॉलेज मिली। मैम मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे बच्चों के जो ग्रामर पार्ट में अलंकार, संधि, समास, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं और उनको समझ नहीं आता है। समास में कुछ भेद ऐसे हैं जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं थ्रू पिक्चर, लेकिन संधि समास कुछ ऐसे उनको बोरिंग से लगते हैं कि वो इसमें इंटरेस्टिंग लगते हैं और जानना ही नहीं चाहते इसको। मैम संधि तो बहुत मजेदार है। संधि जब आप पढ़ाते हैं तो उसको मैथ्स के जैसे पढ़ाइए। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको यूनाइट करो। तो थोड़ा सा उसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है। क्योंकि कर रहे हो तो आप यहाँ से चलो इसको कैंसिल करेंगे, अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, चलो इसको कैंसिल करेंगे, इन दोनों को मिल के क्या कर दिया। सो जैसे ही हम थोड़ा सा उसको इनोवेटिव बनाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं उनके साथ, तो बच्चे सीखते हैं। रूल्स, पहले रूल्स याद करवाइए। रूल्स याद करेंगे तो बच्चा करता है। मुझे तो याद है कि एक बहुत अच्छा हमने इसके ऊपर संधि के ऊपर शायद से सर ने भी शेयर किया था। ग्रुप में भी एक बहुत अच्छा आया है जहाँ पे आप पूरा जी एरोस मैम, बना रहे हैं। पिक्चर के थ्रू आया हुआ है और करके उसमें कुछ बहुत उन्होंने सुंदर है। फॉर्मूला दिए हैं और वो बहुत अच्छा है, फॉर्मूलाज के बहुत थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा है, है वो। बहुत एंड आई अच्छा यूज्ड है टू वो। इन द क्लास, तो मुझे बहुत अच्छा जी लगा था बहुत वो। अच्छा था। यस। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी थैंक यू रीता जी। जी एक कलावती मैम अनम्यूट करें। हाँ यस मैम, नमस्ते मैम, आई एम ए इंग्लिश टीचर एक्चुअली। मैं इसमें क्लास में इसलिए जुड़ी हूँ, आप लोग जो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं मुझे सुनना था एक्चुअली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कैन नॉट टॉक लाइक यू। आप लोग को वो इट्स अ शब्द इतना प्लेजर। मीठी है, हिंदी शब्द मुझे सुनना था, इसलिए मैंने ज्वाइन की इसमें। रियली कलावती मैम, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई अंडरस्टूड वेरी वेल, बट सम जो शब्द है ना आप जैसा यूज करते हैं हम नहीं कर पाते हैं। आपका स्वागत है मैम, आप मैम हमारी हर कार्यशाला में आइए। हर That's कार्यशाला में जुड़िए। why I joined. Very मैम nice. योर the way you speak in English, maybe we will not be able to. No, ma'am, no, you are very talented. You can even talk in English also and even Hindi also. But हम आप जैसा हिंदी नहीं बात कर सकते हैं इतना. That's why I joined. Really, it is very useful and you actually motivated me. Thank you so much. Thank you very much. Thank मैम you very I much. also got inspired like you only. So once I heard that Hindi teachers तो English में बात नहीं करते, so that day I decided I want to do something. And recently my English story got published in one of the very famous writers' book. Very good, ma'am. Thank you very much. Really very interesting and excellent session, ma'am. Thank you very much. It's our this thing that we have to keep motivating us. कि we have to learn. So here today I have learned so many things from you all. Yeah, I also learned many things, ma'am. Really. Thanks a The lot. last session also for English session also attended. I attended that lesson, that session also. But this is for Hindi. They said then also. I thought really I want to learn some pure Hindi words. Really, how while delivering how you are saying fluently, even I can't talk in Hindi like that. That's why. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. शिवानी मैम, शिवानी भटनागर मैम। Last question, you can take last question. Already 8:30. जी सर, Yeah. जी सर। बहुत छोटा सा एक प्रश्न है। नमस्ते सभी को।
मुझे एक थोड़ा सा संदेह है लर्निंग आउटकम, संदेह मुझे नहीं है, लेकिन ये जो चर्चा होती है हम लोग के बीच में कि लर्निंग आउटकम्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए, जिनका हम मापन कर सकें, देख सकें बच्चों में वो चीजें संप्राप्ति हो रही है या नहीं। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना होता है कि लर्निंग आउटकम हमेशा मापन योग्य नहीं होते हैं, तो उस विचारे में मैं बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी। मैम मैंने इसीलिए वो रूब्रिक्स शेयर किए थे कि ऐसा नहीं है कि हम उनकी गतिविधियों का मापन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने साक्षात्कार किया है तो कैसे बच्चा प्रश्न बना पाया, क्या बच्चा प्रश्न पूछ पाया, तो हमारे रूब्रिक्स जब हमारे पास क्लियर होंगे। अब आप जैसे व्याकरण का भी कोई भी विषय लेते हैं तो उसमें भी आप अपने रूब्रिक्स बनाइए। वर्ग पहेली बना रहे हैं, वर्ग पहेली में भी हर बच्चा सारी चीजें नहीं कर पाता, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते। तो जब हमारे रूब्रिक्स क्लियर होंगे तो हम उनका मापन अच्छे से जरूर कर पाएंगे। जी, जैसे कोई भी मेरे पाठ साथियों का मानना है कि एक हमने जैसे लाइन दी कि दया प्रेम आदि मानवीय गुणों का विकास होगा, तो उसका मापन करने के लिए हमें कोई एक्टिविटी बनानी होगी बच्चों के लिए ना, यस, तभी मापन आप उसका उन्हें हो पाएगा। पोस्टर बनाने दीजिए, आप उन्हें पोस्टर बनाने के लिए कहिए, या उन्हें कोई ऐसा प्रकल्प दीजिए जिसमें सही में वो चीजें करें। करने के बाद जब वो सबमिट करें तो आप उसका मूल्यमापन कर रहे हैं ना। जी, तो वो जरूरी नहीं कि हर हमें बार, रखना है मतलब वहाँ। हमें बर्डन नहीं करना है, हमें जी उन्हें बर्डन भी नहीं करना है। आप एक एम बना के चलिए कि आज मुझे ये 5 बच्चों के साथ इसका मतलब मूल्यमापन करना है, तो उससे क्या होगा, वो बच्चों के साथ आप जुड़े रहेंगे। जी क्योंकि जो भी विषय हमने पढ़ाया है उसकी पुनरावर्तन भी आवश्यक है। तो आज पढ़ाया, उसके बाद 3 दिन के बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, धीरे 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 जब हम उसको रिपीट करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। तो हम्म आपका मूल्यमापन भी होता रहेगा। आप अलग अलग तरीके से पूछिए, आप बच्चों में आप ना, मतलब इसीलिए प्लानिंग है ना कि आप हम्म। जब कक्षा में जा रहे हैं, मुझे आज इन 5 बच्चों के ऊपर, इस विषय के ऊपर उनका मूल्यमापन करना है, तो आज मैं उसको इस वे में करूँ। नहीं छोड़ सकते कि दया प्रेम आदि मानवीय गुणों का विकास होगा, हमें इसके लिए एक्टिविटी बनानी जरूरी रहेगी यस, कि एक्टिविटी बनानी है छोटी सिंपल, उनको बर्डन नहीं करना है कि हर बार हम उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे दें, या कई बच्चे ड्राइंग में अच्छे ही नहीं है, जी तो कैसे बच्चा ड्राइंग बनाएगा। जी जी तो देन कहीं ना कहीं हम उसकी हेल्प करें, उसकी सहायता करें, उसके उस स्किल को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सर क्या हम एक प्रश्न और ले सकते हैं? Yes, ma'am, please. जी, माला मैम प्लीज अनम्यूट करिए मैम। या मैम, ये सेशन तो बहुत अच्छा था, बट आई जस्ट वांटेड लाइक द अटेंडेंस लिंक ओवर देयर. अटेंडेंस It लिंक is है already ऑलरेडी posted in the सेजा, chat box, या The chat is disabled. but you can see it. No, you can copy it. You can click it. I am posting it again. Okay, sir. Thank you so much. धन्यवाद मैम, सुनीता मैम। यह कार्यशाला अपने अंतिम पायदान पर आ पहुंची है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु एक उत्तम पाठ्य योजना की आवश्यकता तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमारी समस्त शंकाओं के सुगम समाधान हेतु सुनीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम सर। शिक्षक समूह की शिक्षण संबंधी परेशानियों की समझ, हमेशा मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। विजय पिल्लई सर ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सहयोगी भावना लिए आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहने हेतु हमारी तकनीकी टीम और अरुण मोहन सर का दिल से आभार। और अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता, धैर्य और समर्पण के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की संवाद रूपी प्रतिक्रियाएं प्रशंसनीय रहीं। सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक को भरने हेतु अनुरोध करना चाहूंगी, जो आपके साथ साझा की जा चुकी है, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी जल्द ही एक नवीन विषय और नवीन चर्चा हेतु पुनः एकत्रित हों, इस आशा
तथा एक खूबसूरत विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और माननीय सलाम सर से सत्र की समाप्ति की आज्ञा चाहूंगी। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहें और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें। ओवर टू सलाम सर। बहुत धन्यवाद दोनों को। थैंक यू सो मच। वेल, सुनीता मैम, अति उत्तम। You did it very, very well. Actually, there were a lot of interactions, discussions happening, lot of serious learning happening. So your efforts have, proven fruit, and many are very happy. All the educators are very happy. They were equally contributing to the discussions. So thank you so much for your time, your effort. Definitely, this is going to help everyone. Similarly, equally thankful to Mukta ma'am. Both of you are very much, the chemistry was very working too much. She was also, madam also contributing to Sunita madam's comments and presentations. So that was something different today compared to other sessions. So thank you so much for both of your contributions. And also, I would like to thank all the participants who have joined and helped us conduct this session so well. And also my team members, Sarita madam is there, Arun Mohan sir, and everybody. Viju S. Pillai is not well, hospitalized, but still he joined. Thank you so much, Viju sir, and everybody. Let's connect again. Sunita ma'am, once again, thank you so much. Mukta ji, Thank you so much, everybody. थैंक यू सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे everybody. Take care, Biju sir. Yeah. Thank you so much. Thank you, Mukta ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. Sarita. Thank you, sir. Thank- Thank you, Thank you. Arun sir. Thank you. Thank you, everyone.